ये सेल्फ डिसिप्लिन होता है माइंडफुल होना कि हाँ सिचुएशंस हमें कैसी भी आ सकती हैं लाइफ में, बट वी नीड टू होल्ड ऑन टू आवर कोर। और वही हमने अगर बच्चों को स्टार्टिंग से करना शुरू कर दिया, सो इमेजिन बच्चे को स्कूल जाने में आफत नहीं होगी फिर, क्योंकि उन्हें पता है स्कूल का एनवायरनमेंट अच्छा है। They'll be looking forward to that. I will not be scolded for not doing homework, but my teacher will understand the reason why I didn't do it. तो और आपने बहुत ब्यूटीफुली जैसे माइंडफुल कॉन्वर्सेशन का बोला था, तो अब इमेजिन अगर वो, क्योंकि सी हर एक बच्चा टिल सर्टेन एज ना एनर्जी फील करता है, तो अगर उसे पता ही नहीं, अगर उसको वो फीलिंग ही नहीं आ रही सेफ्टी की अपनी टीचर से, तो कैसे बताएगा मैम मेरे घर पे इश्यू है, मैं इसलिए नहीं पढ़ पा रहा, मैं इसलिए नहीं होमवर्क कर पा रहा, तो उस बच्चे को सपोर्ट कैसे मिलेगा? नाउ इमेजिन घर पे उसका डिस्टर्ब फैमिली वो हो सकता है सेटअप, और वो वहाँ से निकल के स्कूल आ रहा है जहाँ पे उसको होमवर्क के लिए चांटे पड़ रहे हैं, तो वो कहते हैं ना फ्राइंग पैन टू फायर वाली बात हो जाएगी कि बच्चे के लिए तो एस्केप ही नहीं। फिर बिल्कुल वो घर जाके चांटे खा रहा है कि तेरे नंबर नहीं आ रहे, और वो वहाँ स्कूल में चांटे खा रहे तो होमवर्क नहीं कर रहा, पर कॉज कोई नहीं जानने की कोशिश कर रहा, क्योंकि कोई माइंडफुल नहीं That's so saddening. And I think this is the reality of the society that we are living in. आई बिलीव कि क्योंकि हमारे स्पेशली इंडियन एजुकेशन सिस्टम में और सोसाइटी में स्कूल्स को बड़ा एक महत्वता दी जाती है, क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा वहीं पे टाइम स्पेंड करते हैं, वहीं पे उनकी इट्स कल्टिवेटिंग देयर हैबिट्स इन वर्ल्ड व्यूज। सो आई बिलीव कि हमारे जैसे एनुअल डेज होते हैं या पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, वहाँ पे सेशंस रखवा दीजिए, जिनके पेरेंट्स आ रहे हैं उनके साथ एक माइंडफुल सेशन रख लीजिए, एक छोटा सा साउंड हीलिंग रख लीजिए। को लग रहा है कि मैंने किन्हीं एक स्पिरिचुअल गुरु को ही सुना था जिन्होंने कहा था कि आप अगर गुरबानी सुनते हुए खाना बनाएंगे तो खाने का रस बढ़ जाएगा, क्योंकि आप माइंडफुल हो जाते हैं। बिल्कुल। Hello all, welcome to our podcast, a podcast where we try to dive into the extraordinary minds of people who have either broken barriers, shaped industries, or those who can inspire billions. Today we have somebody with us who is a theatre writer, director, and actor. He's been into mindfulness. The topic for today's podcast is mindful conversations. Conversations are happening around us everywhere between parents and their children, teachers and their students, amongst the students. Also, you must have listened statements like मेरा ये intention नहीं था, and sometimes we don't want to hurt somebody through our conversation, but we end up hurting them with our words. So that is mindfulness. In this podcast, we will talk about how to conduct mindful conversation at home, at school, and everywhere around us. Also, we will discuss that how, by inculcating the concept of mindfulness in classroom, we can improve the learning outcomes, the mental health of students, also increase the effectiveness of teaching pedagogies in educational institutions. So please stay tuned to the last of the podcast to understand the deep meaning of mindful conversations. Hi, my name is Vyas Anand. I am a theatre director, actor, writer. And in past, I worked with a YouTube channel called PopXO. I've got an experience of working for over 400 videos as assistant director, as writer, as actor even. And yeah, that's pretty much about it. I'm also like a independent filmmaker. I'm away kind of pretty much away from it currently. I'm more focused on theatre and stage plays Very nice. based in Delhi. Yeah, hi. Okay, Vyas. So behind the scenes, we have talked about the quality of conversations that happen around us. Yeah. While we look at education institutions, there are conversations happening between teachers and students. In offices, we see between boss and employees. Yeah. So we talked about mindfulness here, that it's very important to be mindful while we are talking, we're having conversations with other, right? Elaborate upon this, please. So basically, people have institutionalized spirituality as well, which mindfulness makes the foundation of it. Okay. So being mindful is nothing but just being aware of what you're doing. Okay. Like you very beautifully said that we've got conversations with our bosses, with our colleagues, even with our parents, our siblings. What I say is these are interpersonal.
but it first starts with intrapersonal. Okay. How you talk to yourself and how much you're aware about it sets the tone for how you interact with others around you. True. Like it's a very competitive society now, right? And people might say something to you to bring you down, to harm your confidence. Now if you carry forward with that feeling and you talk to yourself like, I'm not good enough, so if you become self-critical, you'll be critical about others. So appreciation, that forms the basis of a good mindful conversation, be it with our own selves and others. Okay. So being mindful, like I said, is nothing but being aware of what you are doing. Okay. Now, like we are talking, Yes. and I'm mindful about it. Yes. So being mindful and aware would mean I'm listening to you for what you are saying and not to give a response. Yes. Right? Because when I'll be listening, then I'll be knowing, okay, this is what I'm speaking. This is what she wants to know. Yeah. So yeah, that's it. That's exactly what it is about being mindful and self-aware. Okay. So how does mindfulness plays in an educational institution? Do you think that being mindful Yep. will improve the conversations happening between teachers and students? Absolutely. And I guess the starting point of being mindful Yes. is intention setting, Okay. जिसको हम नियत कहते हैं कि आपकी नियत क्या है. अगर मान लें हम बहुत अच्छे दोस्त हैं और आपको मेरे से कुछ प्रॉब्लम हुई, कोई गिला शिकवा हुआ, आप आती हैं मेरे पास, अगर मेरी इंटेंशन नहीं है इसे ठीक करने की, Yeah. तो मैं बस ये रेडी रहूंगा कि हाँ ये कुछ बोले और मैं वापस उल्टा जवाब दूं. Exactly. So similarly, in education institutions, it's the intention setting of the teacher. Because she sets the rhythm and the vibe of the room, right? She sets the energy. अगर टीचर सिर्फ आके गुस्से में या टायर्ड या इरिटेटेड आ रही हैं, तो वो जो इन पर्पस है एक बच्चे का स्कूल जाके समझना, एक बच्चे का सिर्फ ये पर्पस नहीं है स्कूल जाके समझना कि एलजेब्रा क्या है, विलियम शेक्सपियर क्या है, वहाँ उनकी ग्रोथ हो रही है, उनकी पर्सनालिटी बन रही है. एंड इफ द टीचर इज कॉन्स्टेंटली अनॉयड एंड पनिशिंग देम फॉर स्मॉल थिंग्स लाइक होमवर्क नहीं हुआ आप क्लास से बाहर जाओ, तो अननोइंगली बच्चे के माइंड में टीचर बुली बन सकती है. Exactly. एंड वो बिहेवियर इम्बाइब करके एज दे ग्रो अप, They can become a big bully themselves. Yes. बिकॉज दे विल बी लाइक मेरी चीजें फुलफिल नहीं हो रही, Yeah. ये बंदा ठीक नहीं है, मेरी सर्टेन एक्सपेक्टेशंस है इस बंदे से, वो ठीक नहीं कर रहे, तो मैं अब इन्हें बुली करूंगा. आई पनिश देम. सो रादर देन अ स्फेयर एंड एन एटमॉस्फेयर ऑफ वेयर इन किड्स विल ग्रो, इट हैज बीन मेड एन एनवायरनमेंट ऑफ क्राइम एंड पनिशमेंट वाला हो गया कि आप कुछ गलती करो तो हम आपको बताएंगे कि आप क्लास से बाहर जाए, आप अपने पेरेंट्स को लेके आए, आपको ये ग्रेड मिलेगा. तो वहां पे हमारी माइंडफुलनेस आप कह सकते हैं वो क्लास में एंटर ही नहीं करती, क्योंकि टीचर का इंटेंशन वो नहीं है. उनका एक सिक्योर जॉब रहे, बच्चों को पढ़ा ले एंड दैट्स इट. क्योंकि माइंडफुल होना, मैंने जैसे अभी आपको बोला, अगर मैं माइंडफुल हूँगा तो मेरे को होगा मेरी क्या बात रमनी को बुरी भी लग सकती है. Before speaking, I will make this sure कि आपको कुछ बुरा ना लगे. क्योंकि माइंडफुल का बहुत फंडामेंटली सिंपैथी नहीं एम्पैथी होता है एक एलिमेंट. यू नीड टू एम्पैथाइज The others' emotions. एब्सोल्युटली. तो अब टीचर को नहीं पता लगता, उन्हें लगता है मैं अपना टारगेट बनाने के लिए कि मैंने बच्चों को होमवर्क दिया था, होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ, एंड शी स्लैप्स अ किड. बट वो स्लैप का रेपरकशन उस बच्चे पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वो हम कभी नहीं सोच सकते. तो ये So how to make mindfulness enter a classroom? Like you said, it has not yet entered. So how to make it enter? well, honestly, I had a very close friend of mine. He's very senior to me, and he's a teacher mentor. He has worked very closely with Mr. Sisodi and the last Vijay. Okay. And they started with this beautiful program of teacher mentorship. Okay. So wherein the teachers were first introduced with mindfulness. They were trained under that कि आप पहले खुद महसूस करें कि mindfulness की exercise होती क्या है. तो जब teachers का बहुत एक positive response आया, तो आपके अंडर गवर्नमेंट स्कूल्स में प्रॉपर स्टार्टिंग के 10 minutes were devoted. I don't know whether it's still happening or not. I guess it is, क्योंकि they can't change the curriculum like that. But this mindful segment was added in this In initial. which school? All the government schools. All the government. Yeah, under आप. Okay, Yeah. okay. All the government schools, आपकी असेंबली हुई, अच्छा. बच्चे क्लास में गए, तो पहले पीरियड से पहले 10 मिनट एक माइंडफुल सेशन होता है जहाँ पे इट यूज्ड टू बी लाइक सेमी गाइडेड मेडिटेशन.
Okay. या एंड एवरी टीचर वर ट्रेन स्पेसिफिकली लाइक आई सेड कि पहले टीचर्स को ट्रेन किया था कि पहले आप समझे कि है क्या, तभी आप बच्चों को भी गाइड कर पाएंगे। तो साइलेंस में बैठ के बच्चों को एक पॉजिटिव एफर्मेशन वाला एक एनवायरनमेंट बनाया जाता था एंड उसके बाद दिन शुरू किया जाता था। Very nice. या तो उसके लिए मेरे ख्याल से एक तो ये छोटा सा सेगमेंट हो ही गया, बट आई गेस एक बच्चों को छोटा सा नज करना, स्पेशली बिकॉज आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड ऑफ थिएटर, कि थिएटर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बच्चों को बहुत पुश करना चाहिए। एक से एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम अ कल्चर, रमनी का भी, और वो ना कल्चर है नहीं अभी। तो माइंडफुलनेस का आपको एक एक्सपीरियंस देना होता है ताकि बच्चा सामने से फिर क्रेव करे वो कि हाँ, एक ऐसे आप इमेजिन करें आपकी बैक टू बैक हेक्टिक क्लासेस चल रही हैं और बस एक 45 मिनट्स की क्लास है जहाँ पे 10-15 मिनट बच्चों को कुछ नहीं करा रहे आप, कुछ भी नहीं, आप बस उनको बिठा के आप कह रहे हैं जस्ट बी, एंड उसके बाद अगर आप उनसे बात करवाएं, उनसे इंटरैक्ट करें, उनको कोई एक्सरसाइज कराएं, आप अपने आप देखना उनका परफॉर्मेंस लेवल बहुत अमेजिंग हो जाएगा, बहुत बेटर हो जाएगा। So do you think जो ये mindfulness activities हैं will have a direct impact on the learning outcomes जो ये education institutions define करते हैं? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, क्योंकि आप उनकी अवेयरनेस क्वेश्चन को एक तो इम्प्रूव कर रहे हैं, एंड सेकेंडली इंटेंशन सेटिंग। Okay. एक बच्चा डर के मारे कि मैं मैथ्स में वीक हूँ इसलिए नहीं वो बोझा ढो रहा और ट्यूशंस जा रहा, उसकी एक इंटेंशन बने, जैसे ही वो माइंडफुल हो जाएगा उसको पता चल जाएगा ना कि मैथ्स के साथ एग्जैक्टली ऐसा क्या पॉइंट है जो मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स स्मूथनिंग ऑफ चीजें हो ही जाएंगी। जब टीचर्स माइंडफुल होंगी तो उनको समझ में आएगा कि इतनी क्लास के बच्चों में से इतने बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है चैप्टर या इस पर्टिकुलर टॉपिक में इश्यू हो रहा है, तो शी विल बिकम माइंडफुल, तो वो फिर टाइम निकाल के उनको एक स्पेशल अटेंशन पे शी कैन हेल्प देम आउट। फिर सिमिलरली वो बैक एंड फोर्थ होगा कि अगर टीचर्स माइंडफुल होंगी तो बच्चे भी होंगे कि यार मेरा वीक पॉइंट क्या है, मेरे को मैथ्स क्यों नहीं अच्छी लग रही, Okay. या साइंस क्यों नहीं अच्छी लग रही, तो ऑफ कोर्स इट विल डेफिनेटली स्मूथ डाउन द होल प्रोसेस। तो जो टीचर को बर्डन होगा कि ये बच्चों को खींच खींच के मुझे नंबर दिलाने हैं, वो स्मूथ हो जाएगा, क्योंकि वहां पे फिर बच्चा भी सामने से आएगा ना, मैम मुझे ये समझ नहीं आ रहा, वो एक ओपन कम्युनिकेशन चैनल होगा। Yeah. तो वो बच्चा वो बच्चा भी टीचर को कम्युनिकेट कर पाएगा माइंडफुली कि मैम मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही, सो प्लीज हेल्प मी आउट। So Vyas, it was a very intense discussion. मुझे एक बात समझ में आई इस आपकी बातों से जी। कि माइंडफुलनेस कहीं ना कहीं सेल्फ अवेयरनेस से रिलेटेड है, क्योंकि मुझे पता चल पा रहा है कि मेरी कमियां क्या है एंड आई हैव टू वर्क ऑन इट। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, क्योंकि देखिए लाइक इट देयर इज दिस कोट ना कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, यस सो योर होम इज योरसेल्फ फर्स्ट। यस सो अगर आप अपनी नीड्स, अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स के लिए अवेयर होंगे, तभी तो आप दूसरे को बता पाएंगे कि ये मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा या मुझे ये अच्छा लग रहा है। हर बार सिर्फ हम क्रिटिकली क्यों है, एप्रिसिएशन का एनवायरनमेंट होना चाहिए। अभी रिसेंटली आई वर्क विद अ थिएटर ग्रुप एंड वहाँ पे जैसे हमारी रिहर्सल होती थी तो जो भी पूछते थे किसी से डायरेक्ट यूज्ड टू आस्क एवरी मेंबर कि यार आपको क्या लगता है किसी के और मेंबर्स की एक्टिंग और परफॉर्मेंस पे क्या था। तो जब भी वो एक बार, दो बार, तीन बार जब मैंने पैटर्न नोटिस किया तो मैंने डायरेक्टर को सबके सामने ये बात बोली थी कि यार ब्रो, आपको नहीं लगता कि यहाँ पे बहुत क्रिटिकल और क्रिटिकिंग का एनवायरनमेंट है, मतलब हर कोई यार उसकी ये ब्लॉकिंग ठीक नहीं थी, स्टेज पे उसकी आवाज़ कम थी, ये बातें बोलते हैं, बट किसी ने ये नहीं बोला कि यार वो तो ठीक है बट ये इसने बहुत अच्छा किया, क्योंकि वो वी आर ट्रेन्ड इन दैट मैनर। हम लोग कमियां निकालने में मतलब ज्यादा फोकस करते हैं rather than appreciating अपनी भी। नहीं रमनीक, ओके, सो आई थिंक हमने जितने भी बात करी अभी तक व्यास, आई थिंक हमें एक इनकरेजिंग एनवायरनमेंट बिल्ड करने की जरूरत है विद इन आवर क्लासरूम्स। कैन यू सजेस्ट मोर वेज ऑफ फॉर इंक्लूडिंग माइंडफुलनेस इन क्लासरूम्स? absolutely, in fact I think we can include mindfulness even beyond classrooms, ओके, like you know, having a theater teacher or a theater department in the school. ओके, एंड यू नो, थिएटर एक इतनी ब्यूटीफुल मीडियम ऑफ आर्ट है कि आप उसको कहीं भी कर सकते हैं। नुक्कड़ नाटक जैसे कि नुक्कड़ में किया जा सकता है, जी, और ऑफ कोर्स स्टेज प्लेज एक डिफाइंड प्ले में जाते हैं, बट नाटक कहीं भी चल सकता है। हम भी तो एक किस्म से कहीं ना कहीं नाटक ही करते रहते हैं। तो थिएटर को एज अ यूज करते हुए हम बच्चों को प्लेग्राउंड में ले जाके क्लासेस ले सकते हैं व्हेन यू नो वेदर इज गुड। एंड जैसे हम साइंस में आई गेस 7th 8th ग्रेड में रिप्रोडक्शन चैप्टर ऑफ फ्लावर्स आ जाता है, तो आप उनको लाइव लेके जाएं। आप उस हिसाब से स्कूल की प्लानिंग कीजिए जहाँ पे एक फीमेल
प्लांट है, मेल प्लांट है, आप उनको इंटरैक्ट इमर्सिव करना है। क्योंकि उससे क्या होगा, जब आप बोर्ड पे बनाएंगे ना फ्लावर, वो बस एक 2D फॉर्म है, बट जब आप रियल टाइम लेके जाएंगे तो बच्चे में एम्पैथी भी आएगी, माइंडफुलनेस होगी, अवेयरनेस आएगी, यार ये लिविंग है, राइट? इसको तोड़ के नीचे गिरा के इसको पैर से क्रश नहीं करना, इट्स अ लिविंग थिंग। Yes. और वो माइंडफुलनेस जब आएगी तो वो एक बच्चा एक एम्पैथेटिक सेंसिटिव एडल्ट बनेगा, True. राइट? एंड सिमिलरली जैसे मैंने थिएटर किया, थिएटर एक्सरसाइज में तो बहुत चीज़ें आती हैं, क्योंकि आप इमोशन समझते हैं इनैक्टमेंट के थ्रू। तो उन एक्सरसाइजेज में देयर आर सर्टेन एक्सरसाइजेज वेयर यू नीड टू इंटरैक्ट विद द बॉक्स। True. तो आपको एक किस्म से एक डायमेंशन खुलती है आपके ब्रेन की, आपके माइंड की, कि हाँ यार मेरे को अब इसके साथ इंटरैक्ट करना है, तो मेरे को उसके लिए अवेयर होना है, मुझे उस स्पेस में जाना है वेयर एंड आई एम एबल टू इंटरैक्ट विद द बॉक्स। सो नाउ इमेजिन इफ अ किड इज एबल टू इंटरैक्ट विद द बॉक्स, when the box would be replaced with a real human being, तो ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होगा। तो आप बच्चों में इनकलकेट करें ऐसा एक्सपीरियंस माइंडफुलनेस का, कि जब वो अपने साथ उसको लेके जाए तो वो उसको और क्रेव करे, राइट? ताकि अपने फ्रेंड्स में भी वो वैसे इन्वायरमेंट में रहे कि जहाँ पे एक इनकरेजिंग इन्वायरमेंट रहे, राइट? तो माइंडफुलनेस का इन्वायरमेंट वो तो कहीं भी क्रिएट हो सकता है, बट ना वो थोड़ा एक्सपेरिमेंट जोन में आ जाता है। यू हैव टू डिफाई सर्टेन रूल्स ऑफ, वही बच्चे 5-4 घंटे क्लासरूम में बैठे हुए हैं, यू नो, आई शुडंट बी सेइंग आई एम सॉरी, बट ऑलमोस्ट जेल के वे से प्रिजनर्स की तरह सिर्फ लंच ब्रेक में जा रहे हैं, सॉरी बस लंच ब्रेक हुई है, शॉर्ट ब्रेक हुई है, तब बाहर जा रहे हैं। बाहर लेके जाओ, उनको शॉर्ट ट्रिप्स करवाओ स्कूल से। जैसे अभी ये वाला शायद स्प्रिंग टाइम होता है जहाँ पे राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन्स होते हैं, उनका कोई नाम बदल दिया है, वहाँ लेके जाओ। आई रिमेम्बर हमारे टाइम पे, स्कूल टाइम पे, हमें नेहरू प्लानिटोरियम लेके जाते थे। जी। क्या क्या एक्सपीरियंस नहीं होता था वो? अब सोचो, आप एक छोटे बच्चे को इतने डीप स्पेस की चीजें दिखा रहे हैं, वो माइंडफुल नहीं हो रहा? True. कि मेरे सोलर सिस्टम में एक अर्थ है, अर्थ पे एक डॉट हूं मैं, कितना वास्ट है वो यूनिवर्स। तो ऐसी एक्सरसाइजेज जब आप छोटे बच्चों को इनकलकेट करेंगे ऐसी चीज़ों के बारे में कि स्पेस क्या है और उसमें आप कौन है, आप कितने इनसिग्निफिकेंट है, येट किसी से 2 बात मीठी कर लो तो लोग आपको याद रखते हैं। माइंडफुलनेस ही होती है। और आई गेस जितना जल्दी, जितनी यंग एज में इनकलकेट किया जाएगा उतना बेहतर होगा, और उनका डेफिनेटली एकेडमिक स्कोर बहुत बेहतर जाएगा। जी। पेरेंट्स नहीं समझते, बट यू नो, माइंडफुलनेस, स्पिरिचुअलिटी, इन सबको बस बैठ के राम 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 जपने का कर दिया है। नो, स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली तो तब यूज होती है जब आप बैठे हुए नाम जप नहीं कर रहे हैं, जब आप ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। जैसे एक बच्चे के लिए, अब आपने एक बच्चे को सेंसिटिव करा अबाउट सर्टेन थिंग्स, अब जब उसकी डिमांड पूरी नहीं हो रही कि मेरे को खिलौना नहीं दे रहे, या घर पे मम्मी ने राजमा बोला था, लौकी की सब्जी बना दी, कॉन्फ्लिक्ट है बच्चे के लिए, बट वो माइंडफुल होगा कि यार मम्मा पूरा घर भी तो संभाल रही है। वाओ। तो अगर एक सब्जी उन्होंने आज बना दी और वो नहीं भी हो पाई राजमा, तो इट्स ओके। तो बच्चों को बताना अबाउट लाइफ कि एवरीथिंग कैन नॉट बी हंकी डोरी, Yeah. और यू नो विजुअल थिंकिंग Everything doesn't revolve around you. doesn't revolve around you. ये स्टार्टिंग होता है, क्योंकि माइंडफुलनेस में आप जितना जितना ऊपर जाते हैं, फिर आप साधना, और अगर आप हार्डकोर में, तो अल्टीमेटली क्या है, डिसॉल्विंग ईगो। Yes. और चाइल्ड साइकोलॉजी में तो होता ही है कि देयर इज अ सर्टेन एज ऑफ, यू नो, प्री टीन्स, जहाँ पे इट्स कॉल्ड ईगोसेंट्रिज्म, कि द चाइल्ड इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। भगते जा रहा है, टेबल का कोना पैर पे लगा, वो टेबल को मारेगा। तूने मुझे कैसे मारा? क्योंकि इट्स एवरीथिंग इज देयर सेंटर्ड। नाउ इमेजिन अगर आप उनको उस उम्र में बताना शुरू हो जाए कि बेटा ऐसा नहीं है, It was your mistake and not tables. वो तो हिल ही नहीं रहा बेचारा, वो तो वही है। तो सोचो जब हम बड़े होंगे और रमनीक जी ने अगर मेरे को कुछ कभी बुरा कहा, तो ये वाली लर्निंग आएगी कि नहीं आएगी, कि वो है, वो तो वैसे ही है, मैं कैसे रिएक्ट कर रहा हूँ उस पर, वही माइंडफुलनेस और अवेयरनेस आएगी ना। जस्ट लाइक द टेबल, Maybe she had a bad day, इसलिए इसके मुंह से कुछ बुरा निकल गया। वो वैसी ही थी उस टाइम पे, इन दैट गिवन सिचुएशन वो वैसी थी। Yeah. तो मैं उनको बुरा भला कह के क्या कर लूंगा अगर उन्होंने मेरे को कुछ बोल दिया जिससे मैं हर्ट हो गया, Yeah. राइट? तो आप जब वहां पे डालेंगे
तो एक इजी अच्छा ट्रांजिशन आई थिंक इससे मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आया कि आई थिंक रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस होंगे स्कूल में, वेयरइन जो उनको सिखाया जा रहा है उसको को रियल वर्ल्ड पे अप्लाई करने को समझाया जाए कि भैया हाउ कुड दिस बी रिलेटेड टू द रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स और सिनेरियो हाउ एंड in schools we see that they don't discuss the real world issues, है ना? We don't talk about political scenarios. Do you like the budget dictated by the prime minister? काफी स्कूल में हो रहा है ये, नो कहीं पे भी नहीं हो रहा है। Absolutely. तो अगर वो बात की जाएगी तो आई थिंक वो और रिलेट कर पाएंगे कि आई थिंक मैम जो बजट है वो हमारे लिए तो अच्छा है पर वो पुअर पीपल के लिए अच्छा नहीं है, एब्सोल्यूट है ना? तो थोड़े से और एम्पैथेटिक हो पाएंगे, वो अपनी रियल वर्ल्ड को दूसरे लेंस से देख पाएंगे। एंड आई थिंक दिस इज मिसिंग। दिस इज मेजरली मिसिंग, वेरी वेरी वेल सेड। या इट्स वेरी रेजिमेंटेड, और मैंने जैसे बोला कि डिसिप्लिन के नाम पे उनके माइंड्स को कंस्ट्रेट किया जा रहा है। आपने बहुत ब्यूटीफुल पॉइंट बोला। अब टेक्निकली सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं जिनके पास इकोनॉमिक्स है, उनके साथ ये डिस्कशंस होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। कि आपको क्या लग रहा है, आपको क्या आइडिया लग रहा है कि ये फिस्कल डेफिसिट जैसा आता है, क्या चीज, why rupee rate is falling, why the value of rupee is falling, why imports are increasing, है ना? वो क्यों हो रहा है? और आप सोचिए इतनी सिंपल एक्सरसाइज से आपने इतना सुंदर आइडिया दिया। आप एक यंग बच्चे को या बच्ची को नेशनल लेवल के लिए माइंडफुल करा रहे कि हाँ यार ऐसे क्यों हो रहा है? और क्या कर सकता हूँ अगर मैं ना, इमेजिन पॉलिटिशियंस एंड राजनीति इज वन ऑफ द मोस्ट हेटेड Yes, करियर्स, yes. क्योंकि ऐसे बदमाश जाते हैं वो जाते हैं। बट इमेजिन एक छोटे से बच्चे के माइंड में अगर आपने इग्नाइट कर दिया और माइंडफुल बना दिया आपको उस ग्लोबल इशू के लिए या नेशनल इशू के लिए भी, इमेजिन अगर उस बच्चे को एक इंस्पिरेशन मिले कि अगर वो फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा तो हम उस हिसाब से एक बहुत अच्छा कल्चर ऑफ पढ़े लिखे पॉलिटिशियंस भी हम इनकरेज कर रहे हैं, Yes. राइट? नॉट समोसा। Just by taking a simple step of reflective activity in class. रिफ्लेक्टिव, वेरी ब्यूटीफुल, रिफ्लेक्ट करा, Yeah, it has already happened. We are just reflecting on it. वी आर जस्ट रिफ्लेक्टिंग ऑन इट, एब्सोल्युटली। और सेल्फ अवेयरनेस एंड माइंडफुलनेस भी वही होती है कि मैंने कर दिया, जो आसपास हो रहा है मैं उसके बारे में अवेयर हूँ। कि मैंने किसी को बुरा भला कह दिया या किसी ने मुझे बुरा भला कह दिया, हाँ। और आप उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। बिल्कुल। थोड़ा हाई लेवल हो जाएगा, बट इफ यू सीन अ फिल्म कॉल्ड द मैट्रिक्स, No, I'm not. no, beautiful, do watch it. It's a very complicated movie in itself, of how it represents the whole concept of destiny and everything. But there's a very beautiful dialogue wherein a character called the Oracle asks the lead actor, the character of the movie, that would you like to have this candy? And that character says that, why do you ask if you already know my choice, that what I'm gonna take, whether I'm gonna take it or not? So she very beautifully says that we think we have come into this world to make a choice, wherein it's actually just to know why we made a choice. Okay. Please. सेल्फ रिफ्लेक्शन, कि रमनीक ने किसी को कुछ उल्टा बोल दिया, मैंने किसी को कुछ उल्टा बोल दिया, हो गया। अब सेल्फ रिफ्लेक्शन में हम जाके ये सोचेंगे ना हमने क्यों किया। ऐसे ही तो माइंडफुलनेस बढ़ती है। आप जब अपने बोर्ड एग्जाम्स की तरफ जाते हैं तो आप सैंपल पेपर्स करके क्या फिगर आउट कर रहे होते हैं कि कहाँ गलती हो रही है मेरी। जी। माइंडफुलनेस वो प्रैक्टिस है आपकी डेली लाइफ की, कि कहाँ मेरा लैक हो रहा है, कहाँ मैं अपनी हैप्पीनेस को छोड़ देती हूँ। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा तो आजकल बच्चों को जिस तरह से इतना डांटा जाता है, नंबर्स के लिए वो किया जाता है, पुश किया, सेल्फ अबैंडनमेंट हो रही है बच्चों की। दे आर लीविंग देयर ओन सेल्स, क्योंकि उन्हें लग रहा है हाँ मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ। जबकि उनमें कितने ब्यूटीफुल और टैलेंट्स हो सकते हैं। मे बी दे माइट बी डांसर्स, दे माइट बी गुड पेंटर्स, दे माइट बी ब्रिलियंट एक्टर्स, दे माइट बी ब्रिलियंट स्पोर्ट्स पीपल, बट डांटा जा रहा है। तो वहाँ पे वो माइंडफुलनेस क्योंकि पेरेंट्स की साइड से नहीं है, Yes. इनकरेजिंग एनवायरनमेंट नहीं है, तो बच्चे खुद को ही बहुत बचपन में छोड़ दे रहे हैं अपना साथ। उनको होता है आई एम नॉट गुड इनफ। Yes. और उस वजह से जो सारा ब्रेक डाउन ऑफ एजुकेशन सिस्टम हो रहा है कि हम भेड़ बकरियां खड़े कर रहे हैं कि आप जाएं, आप करें, नथिंग इज इनफ। Yes. आई रिमेम्बर मेरे टाइम पे 99% 98 कट ऑफ जा रही है ना, लाइक क्या कर रहे हो आप तो नियर परफेक्शन पे जा रहे हो, जो इम्पॉसिबल है अचीव करना। कितने बच्चे ले आएंगे उतना कट ऑफ ना। तो
माइंडफुलनेस एजुकेशन लेवल पे अगर इनकलकेट की गई तो वो फ्यूचर जनरेशन बिल्डिंग हो रही है। हम ये नहीं समझते, हमें लगता है हम बच्चों से सिर्फ इंजीनियर्स डॉक्टर्स खड़े कर रहे हैं, आप फ्यूचर जनरेशंस खड़ी कर रहे हो। सो लाइक आई रिमेंबर अ वेरी फेमस कोट बाय स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा दैट आई एम पैराफ्रेजिंग इट एग्जैक्टली, मेरे को याद नहीं वो क्या था, बट इट विल जस्ट टेक one generation of kids being initiated into meditation to eradicate global crime. क्योंकि वो एक जनरेशन, इमेजिन ऑल नेशंस डिसाइड कि all the children from their nations who are of 6 years old, 5 years old, if all the nations together initiate them into meditation, कितने सुंदर एडल्ट्स बनेंगे, माइंडफुल एडल्ट्स बनेंगे, सिंपैथेटिक बनेंगे, एम्पैथेटिक इंडिविजुअल्स बनेंगे, सेंसिटिव बनेंगे। तो सोचो फिर वो क्राइम कर ही नहीं पाएंगे ना, क्योंकि दे आर अवेयर। हमारे सर के ऊपर एक रिलीजन की लाठी रहती है, सही गलत डर फियर। आप देखा जाए तो अपने आप में सारे रिलीजन भी डर से ही ऑपरेट होते हैं। बिल्कुल सेल्फ अवेयरनेस से जब आता है कि हाँ यार ये गलत है, वो लर्निंग, वो ग्रोथ अलग होगी। बिल्कुल राइट, क्योंकि रिलीजन वाले एस्पेक्ट में तो आपको सप्रेशन ऑफ इमोशंस भी तो हो सकते हैं कि नहीं गुस्सा नहीं करना, बट माइंडफुल होके जो होगा आपको पता होगा कि यार इसमें कोई फायदा ही नहीं है गुस्सा करने का। तो अगर वो छोटे बच्चों में इनकलकेट कर दिया तो सोचो उनका टाइम कितना बचेगा, जो आप और मैं अपनी उम्र में जाके जिसे कहते हैं ना ठोकरे खा के गिरते पड़ते हैं, हम समझते हैं कि नहीं यार गुस्से में क्या रखा है। वो बच्चों को अगर पहले से हमने एम्पावर कर दिया तो इट्स अ वेरी एम्पावरिंग थिंग, जिसपे ये आई हेट टू से बट वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज मार्केटिंग इट एज ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन एंड ऑल दैट एंड रिट्रीट्स एंड इट्स एक्सोटिक। बेसिक है। मेरे को मेरे एक म्यूजिक टीचर ने बहुत ब्यूटीफुल एक चीज़ बताई थी। कभी हमारे बड़े बुजुर्ग जब हमें कहते हैं तो ऐसा कहते हैं ना, अगर कोई आप काम करने जा रहे हो तो आपकी मम्मा या पापा ने कहा होगा रमनीक ध्यान से करना। तो ध्यान क्या है? वाह, अपने आप में हम जैसी मेडिटेशन में आते हैं तो हमें ध्यान का एम्फेसिस पता लगता है, पर वो एक छोटे एक्ट में भी कहते हैं ना बेटा चाय लाना ध्यान से। तो ध्यान का मतलब क्या होता है कि आपका पूरा फोकस वहाँ पे, आप कहीं और नहीं जा रहे, आप माइंडफुल हैं कि आपका हाथ कैसे होगा, आप कितनी तेज चलोगे ताकि चाय छलके ना, बस यही तो है। उसकी ग्रेविटी हमें कभी पता नहीं लगी थी, बट हमें बचपन से तो यही बोला जाता था ध्यान से करना, ध्यान से पढ़ना, मतलब कहीं और दिमाग में होना चाहिए, वहीं होना चाहिए। तो माइंडफुलनेस, आप 10 मिनट मेडिटेशन करते हो, आप उसको बढ़ाते रहते हो, पर एक्चुअल टास्क, मेरी पर्सनल जर्नी में ये टास्क आया था। बाय गॉड्स ग्रेस आई यूज्ड टू सिट फॉर मेडिटेशन फॉर आई स्टार्टेड विद 15 मिनट्स 10 मिनट्स। एक पॉइंट आया रमनीक, नॉट किडिंग, कि जब मैंने आंख खोली मेरे को 1.5 घंटा हो गया बैठे बैठे, और जिस दिन मेरे को वो अचीव हो गया ना, मैंने फिर अगली बार ऊपर वाले से ये एक चीज़ मांगी कि अब ईश्वर मुझे ये इतनी पावर दो कि अब मैं चलते हुए मेडिटेशन करूं, अब मैं बैठ के नहीं मेडिटेशन करूंगा। विच मीन्स मैं पूरे समय ध्यान दूँ, मैं पूरे समय माइंडफुल हूँ, मुझे पूरे समय पता है कि अगर किसी का कुछ, कैसे स्ट्रेंजर्स के साथ भी, लाइक आप मॉल में जाते हैं, अब मेरे को सडनली अगर देखा कोई एक ओल्ड बंदा आ रहा है, आई ओपन द डोर, तो उनका स्माइल एक्नॉलेजमेंट इज इनफ, दे नो कि यार आई ओपन द डोर, ये माइंडफुल होना है। और ये क्यों होता है? जब आपको पता लगता है कि अगर आपके लिए कोई करेगा तो आपको अच्छा लगेगा। वो एक बाइबल से लाइन बोलते हैं ना, डू ऑन टू योर नेबर वॉट यू वॉन्ट टू बी डन ऑन टू योर सेल्फ वाला जो होता है, कि आप वैसा ही नेबर के साथ व्यवहार करेंगे जैसा आप चाहते हैं आपके साथ हो, तो आप कभी नहीं चाहेंगे ना आप पे चीखा जाए। माइंडफुल होना यही है, सेल्फ अवेयर होना यही है। सो एक घर, ये हाउस होल्ड में कैसे एंटर हो सकती हैं ये वैल्यूज? ब्रिलियंट क्वेश्चन। आई बिलीव कि क्योंकि हमारे स्पेशली इंडियन एजुकेशन सिस्टम में और सोसाइटी में स्कूल्स को बड़ा एक महत्वता दी जाती है, क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा वहीं पे टाइम स्पेंड करते हैं, वहीं पे उनकी इट्स कल्टिवेटिंग देयर हैबिट्स इन वर्ल्ड व्यूज। सो आई बिलीव कि हमारे जैसे एनुअल डेज होते हैं या पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, वहाँ पे सेशंस रखवा दीजिए। जिनके पेरेंट्स आ रहे हैं उनके साथ एक माइंडफुल सेशन रख लीजिए, एक छोटा सा साउंड हीलिंग रख लीजिए। क्योंकि आपको पता है देयर इज अ वेरी साइंटिफिक रीजन कि मंदिरों में घंटी क्यों होती है जब मेन जगह पे होती है, क्योंकि व्हेन यू स्टैंड अंडरनीथ द बेल एंड यू रिंग इट, तो उससे जो वाइब्रेशंस आती है इट क्लेंजेस योर ऑरा। तो सिर्फ वहाँ तक ही क्यों रखना है? आप एक साउंड थेरेपी करें पेरेंट्स के साथ, उन्हें एक्सपीरियंस करवाएं। मेरे को लग रहा है कि मैंने किन्हीं एक स्पिरिचुअल
गुरु को ही सुना था जिन्होंने कहा था कि आप अगर गुरबानी सुनते हुए खाना बनाएंगे तो खाने का रस बढ़ जाएगा, क्योंकि आप माइंडफुल हो जाते हैं। बिल्कुल। अब आपको कॉल पे आपके बॉस ने आपको चीखा, आप आफत में प्याज काट रहे हैं, चाहे कितना ही अच्छा हो, तो वो एक जो फीलिंग आएगी वो, एनर्जी चली गई है उसमें। तो वो घर में कल्टीवेट करने के लिए आपको कल्चर लाना पड़ेगा। देखिए हर चीज़ कल्चर पे आती है। बिल्कुल। हमारा जो एक ही लैंड है सनातन जहाँ पे रहा है, मैं इसको रिलीजन एक उस तरीके से रिलीजन नहीं कहूँगा, इट्स अ वे ऑफ लिविंग। इवन अ क्रिश्चियन पर्सन कैन लिव द वे ऑफ सनातन के वे से। एक मुस्लिम रह सकता है कि सनातन क्या है, सनातन इज एवर एग्जिस्टिंग। और उसकी एक सर्टन चीज़ है जहाँ पे इट्स लाइक यू नीड टू जस्ट कीप अ चेक ऑन योर सेल्फ, विच इज माइंडफुलनेस। यस। कि ध्यान आपका बाहर ना होके अपने पे है। और अगर कॉन्स्टेंटली वो हो गया तो वो एक ऐसा साइकिल शुरू कर देता है जहाँ पे आप कॉन्स्टेंटली हर एवरी ब्रीदिंग मोमेंट यू आर अवेयर ऑफ क्या थॉट आया, राइट। अब मान लीजिए मैं आपके साथ बैठा और सडनली अगर मेरे कोई पास का थॉट आ गया कि किसी ने मेरे को इंसल्ट की थी, सो आई कांट लेट दैट इम्पैक्ट दिस कॉन्वर्सेशन वी आर हैविंग। वेरी ब्यूटीफुल। तो वही वही माइंडफुल होता है। अब मैं खाना बनाता हूँ, आई लव कुकिंग, मैं पूरा पूरा खाना बनाता हूँ। तो बहुत बार होता है कि मैं बल्कि कुकिंग अपना मूड चेंज करने के लिए करता हूँ, क्योंकि इट टेक्स मी इनटू अ ब्लैंक स्पॉट ऑफ चलो यार अब मेरे को जो हो गया सो हो गया, अब मैं यहाँ पे रहूँगा कॉन्स्टेंटली। मेडिटेशन यही तो होती है। तो ध्यान, माइंडफुल, सेल्फ अवेयर, सब इट्स ऑल इंटरलिंक टू अ पॉइंट ऑफ कि भैया आप स्पेशली, क्योंकि आप देखिए ना, मान लीजिए इफ़ यू आर मैरिड और आपकी सासू माँ पे चीख रही है, अब आप वहाँ सब छोड़ छाड़ के चुन्नी बैठ के तो नहीं करेगी, अब अफोर्ड नहीं कर सकते, अब कितने अजीब लगेंगे। ट्रू। तो प्रैक्टिस ये होती है कि आप उस टाइम पे सडनली जब सिचुएशन हाथ से बाहर गई तो आप कैसे खुद को कंपोजर करें। वही मेडिटेशन है। वही ध्यान है, वही सेल्फ अवेयरनेस है, वही माइंडफुलनेस है। ब्यूटीफुल। यस। तो हम पेरेंट्स को ऐसे इंक्लूड कर सकते हैं कि अगर उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है इन चीज़ों का, स्कूल में लाइए, एक किसी पेरेंट टीचर मीटिंग वाले दिन उनके एक सेशन करवा दीजिए छोटा सा, उनको अच्छा लगा ना तो यही आप अपने बच्चों के साथ कीजिए। कोई भजन लगा लीजिए, कोई गुरबानी लगा लीजिए, उनके साथ बस बैठिए। हर बार आपको कहते हैं ना ठेकेदारी नहीं करते रहने, क्या किया काम, क्या किया होमवर्क, नहीं, कभी कभार बस बैठो, फील करो एनवायरनमेंट क्या चल रहा है। वो शांति आप जब फील करेंगे तो ही आप रियलाइज करेंगे कि आपके अंदर क्या चल रहा है। और जो अंदर चल रहा है उसका बाहर निकलना जरूरी नहीं होता हर बार। आई डोंट नो आप सुबह सुबह या दोपहर में अभी आप किस मूड में आए, राइट। आप अभी मेरे साथ बात कर रहे हैं, हम स्माइल कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हैविंग अ ब्रिलियंट कन्वर्सेशन। तो ये भी एक किस्म का हो सकता है कि आप वो बैगेज नहीं लाए सुबह, क्या हो सकता है, तो माइंडफुलनेस ही हुआ ना। बिल्कुल। ट्रू। कि मैं अपने काम पे नहीं लाऊंगी अपनी फ्रस्ट्रेशन। ट्रू। तो सिमिलरली गोज फॉर पेरेंट्स कि अगर ऑफिस में कुछ काम हुआ, माइंडफुलनेस यही होगी ना, बच्चा है मेरे ऑफिस में मेरे बॉस से लड़ाई हुई, मैं अपने बच्चे पे तो नहीं निकाल सकता ना। जो बहुत बार अक्सर हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे होता है, मिसप्लेस्ड एंगर। ट्रू। क्योंकि माइंडफुल है कि यार ये मैं अपना बैगेज अपने बच्चे पे थोड़ा। सो सिमिलरली फिर अगेन गोइंग बैक टू दैट, अगर हमने अच्छे टीचर्स को ट्रेन किया माइंडफुल सेशंस में, तो वो अपने घर की इश्यूज क्लासरूम में नहीं लाएंगी, वो इरिटेशन, वो चीज़ें नहीं लाएंगी। और एक कल्चर है, आई डोंट थिंक जो कि इसको हम कोई इंस्टीट्यूशनलाइज कर सकते हैं कि जी मुझे मेडिटेशन करने में ऋषिकेश जा रहा हूँ, वाई नो, आप अपने घर पे बैठे कर सकते हैं। आपको वो माहौल बनाना आना चाहिए बस, कि आप एक गुरबानी लगाएं, आप एक अच्छा भजन लगाएं, एक छोटी सी अगरबत्ती जलाएं और घर पे घूमते रहिए। जैसे मैंने फिर से बोला, अब सासू में आप पे तूने प्याज ठीक से नहीं और कर रहे हो, वो नहीं मिलेगा मौका। तो आप खुद को ट्रेन करते हैं, सेल्फ ट्रेनिंग, ये सेल्फ डिसिप्लिन होता है माइंडफुल होना। कि हाँ, सिचुएशंस हमें कैसी भी आ सकती हैं लाइफ में, बट वी नीड टू होल्ड ऑन टू आवर कोर। अब वही हमने अगर बच्चों को स्टार्टिंग से करना शुरू कर दिया, सो इमेजिन बच्चे को स्कूल जाने में आफत नहीं होगी फिर, क्योंकि उन्हें पता है स्कूल का एनवायरनमेंट अच्छा है। They'll be looking forward to that. I will not be scolded for not doing homework, but my teacher would understand the reason why I didn't do it. So, और आपने बहुत ब्यूटीफुली जैसे माइंडफुल कॉन्वर्सेशन का बोला था, तो अब इमेजिन अगर वो, क्योंकि सी हर एक बच्चा टिल सर्टेन एज ना एनर्जी फील करता है, तो अगर उसे पता ही नहीं, अगर उसको वो फीलिंग ही नहीं आ रही सेफ्टी की अपनी टीचर से, तो कैसे बताएगा मैम मेरे घर पे इशू है, मैं इसलिए नहीं पढ़ पा रहा, मैं इसलिए नहीं होमवर्क कर पा रहा। तो उस बच्चे को सपोर्ट कैसे मिलेगा। नाउ इमेजिन घर पे उसका डिस्टर्ब फैमिली वो हो सकता है सेटअप, और वो वहाँ से निकल के स्कूल आ रहा है जहाँ पे उसको होमवर्क के लिए चांटे पड़ रहे हैं।
तो वो कहते हैं ना फ्राइंग पैन टू फायर वाली बात हो जाएगी कि बच्चे के लिए तो एस्केप ही नहीं फिर। बिल्कुल। वो घर जाके चांटे खा रहे कि तेरे नंबर नहीं आ रहे, और वो वहाँ स्कूल में चांटे खा रहे तो होमवर्क नहीं कर रहा, पर कॉज कोई नहीं जानने की कोशिश कर रहा क्योंकि कोई माइंडफुल नहीं That's so रहा। saddening. But and this, I think this is the reality of the society that we are living in. एक ना क्विक रिकैप करते हैं रियाज कि जितनी भी हमने अभी तक बात करी, हमने टीचर्स के बारे में बात करी कि पेडागोजी में थोड़ा बदलाव आना चाहिए। फर्स्ट मेडिटेशन एक्सरसाइज फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द डे, जब बच्चा एंटर होता है क्लासरूम में, ताकि वो एम्पैथेटिक रिलेशनशिप बन पाए बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट्स, आल्सो अमंग द स्टूडेंट्स। एब्सोल्युटली। बिकॉज वो आपस में बुली नहीं करेंगे एक दूसरे को, टीचर्स डिमीन नहीं करेंगे स्टूडेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्क्स स्कोर और एनीथिंग एल्स, एनी अदर पैरामीटर। यस। और इंस्टीट्यूशंस को भी स्टेप लेना चाहिए फॉर इंडल्केटिंग एक्टिविटीज टू मेक द पेरेंट्स लर्न अबाउट माइंडफुलनेस। Absolutely. इस सब के बारे में क्विक रिकैप हमारे स्टूडेंट्स के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए। Definitely. I would just say कि be open-minded about life, about things, because life is gonna be how it's gonna be. But mindfulness just empowers you with the fact that you have that grounding factor in your life. उसे कहते हैं ना इमोशंस के सैलाब में आप बह नहीं जाओगे। तो ये बड़ों का दायित्व बनता है, ये पेरेंट्स का, टीचर्स का दायित्व बनता है कि आप अपने बच्चों को एम्पावर करें कि जब उनकी लाइफ में टर्मोइल आए तो वो एम्पावर्ड रहे। बट वो हमसे ही शुरुआत होगी। ट्रू। राइट। तो स्कूल्स में आप बच्चों को डेफिनेटली आर्ट्स के लिए पुश करें, थोड़ा सा उनको वो टाइम दे कि दे शुड गेट इट आउट। वॉल्स पेंट करने दीजिए, स्केच पेन दीजिए, ब्लैंक वॉल दीजिए एंड गो फॉर इट। आई स्टिल रिमेंबर मेरे स्कूल में, इनफैक्ट मेरा BGMC जो मेरा जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन था, हमारा जो सबसे पहला इवेंट हुआ था वो ग्राफिटी वॉल पेंटिंग था। कैन यू बीट दैट? एंड जिनको कुछ भी नहीं आता था रमनी, उन्होंने पेंसिल से इतनी बड़ी बड़ी वॉल्स पे 7 फीट की, दे जस्ट ट्राई टू गेट इट आउट कि यार हम क्या बना सकते हैं, एक थीम जो दी थी। सो गिव दैट टाइम, गिव दैट स्पेस टू चिल्ड्रन, हैव अ ब्लैंक वॉल, उसको वापस पेंट करा दो यार। बट उनको वो निकाल दे दो, लेट इट अनलीश। जैसे तारे ज़मीं पर पे आमिर खान ने बहुत ब्यूटीफुली वो पेंटिंग वाला एक सेगमेंट है, राइट? वहाँ पे वो उनके टीचर्स को निकाल, बिकॉज वी कैन नेवर नो। हम तो यहाँ पे बच्चों के लिए वो कर रहे हैं, हमें नहीं पता पेरेंट्स से क्या निकल सकता है। इमेजिन एक माइंडफुल सेशन में बात हो रही है, आपने जैसे ओपन कॉन्वर्सेशन का, रिफ्लेक्शन का बात किया, तो आप एक सेशन के बाद पेरेंट्स से पूछिए कि इफ़ यू कैन वॉक अस थ्रू योर चाइल्डहुड, आप बताओ आपकी ऐसी क्या डिज़ायर थी। तो हमें नहीं पता कि किसी एक मदर का कथक डांसर होने का हो सकता है, किसी एक फादर का सिंगिंग हो सकता है, और वो उसे निकालें एंड दे विल बी रिकनेक्टिंग टू दैट इनर चाइल्ड, राइट? और मेरे ख्याल से सबसे टॉप लेवल वही आता है जहाँ पे आप अपने अंदर के चाइल्ड को टेक केयर करना शुरू है, वो हाईएस्ट लेवल ऑफ माइंडफुलनेस होती है। सो येस, गिविंग अ वेरी गुड स्पेस टू चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, पुशिंग देम इनटू नॉट पुशिंग देम बट गिविंग देम अ स्मॉल नज टू परस्यू आर्ट्स, गेट इट आउट। डेफिनेटली स्पोर्ट्स, थिएटर एक बहुत सुंदर एक्सरसाइज रहती है टू एम्प्टी योरसेल्फ, राइट? ओपन आउटडोर क्लासेस लेना। आई वाज रियली ब्लेस्ड टू हैव अ साइंस पार्क इन माय स्कूल। तो हमारा एक दिन का क्लास होती थी साइंस में, जहाँ पे हम प्रॉपर आउटडोर जाके खुले आसमान में हम साइंस पार्क में एक्सप्लोर करते थे एक्सपेरिमेंट्स, राइट? रियल टाइम एंगेजमेंट करना, इमर्सिव करना, ताकि वो सेंसिटिव होए अपने लिए भी, अपने फ्रेंड्स के लिए भी, अपनी टीचर्स के लिए भी, और हर चीज़ के लिए। फिर वो रिजेंटमेंट नहीं लेके चलेंगे, फिर वो बुलीज नहीं बनेंगे, उन्हें फॉरगिवनेस आएगी, यस, राइट? हमने पहले भी बात करी है, फॉरगिवनेस सबसे हेवी चीज़ होती है, और माइंडफुलनेस आपको अल्टीमेटली वहीं लेके जाती है। ना रमनीक की गलती थी, ना मेरी गलती थी, तो उसको भी माफ़, खुद को भी माफ़। लेट्स मूव ऑन इन लाइफ। एंड आई गेस सिर्फ एक जनरेशन पे फोकस करना, एक जनरेशन उनको एम्पावर करना, मेरे ख्याल से सत्युग ले आएगा। सिर्फ एक जनरेशन। अगर सबने ठान ली ना कि यार हम 2nd क्लास के बच्चों के साथ ही एक प्रोग्राम इनकलकेट कर रहे हैं जहाँ पे उनको घर में और स्कूल दोनों में एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, जहाँ पे दे बिकम सेल्फ अवेयर। आई गेस वो एक बैच को ही अगर हम पूरा फोकस में लेते हुए चलेंगे ना, दे विल क्रिएट far more better future than we are expecting through whatever means we are trying to do currently. yes. Yeah. So thank you, Vyas. It was great having you. I think it was very intense discussion और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। ये भी सीखने को मिला कि आई थिंक जो बेटर वर्ल्ड बनाने के लिए हमें सिर्फ मार्क्स की ज़रूरत नहीं है, या हमें सिर्फ अच्छी जॉब लाने की ज़रूरत है। वी नीड टू मेक आवर चिल्ड्रन अ बेटर इंडिविजुअल्स, and it will call up a revolution for the world. Then crime rate decrease हो जाएगा,
सब कुछ मतलब हैप्पीनेस इंडेक्स में ऊपर चले जाएंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, है नहीं? एंड आई थिंक this should be the true reflection of our education institutions. So this podcast was not just a learning for our students, but all the foundation members of education institutions जो सुन पा रहे हैं इसको, कि what programs can be inculcated to make our students, our teachers and their parents mindful. Collectively. Collectively. Absolutely. Beautiful. So thank you, Vyas. Thank you so much. In the end, I would like to say I have done many podcasts till now, and I think all the podcast learnings had just been limited to the students or the parents. But I think this podcast has been truly inspirational for everybody around us, the educators, the education institutions who are just limiting to the knowledge that is imparted in the education institutions to just curriculum. They are not making our students better human beings. They're not calling these institutions can bring up revolution. It can help in reducing the crime rates. I was astonished to listen to the fact that if you just be mindful in your conversations that you conduct everywhere around us, the hatred can reduce, the crime rate can decrease, the happiness index can improve for our Indian economy. So it is very important that education institutes inculcate small habits, small activities of making our children mindful, so that they don't become bullies in future. They don't murder somebody because somebody said something bad to them. They understand the background. Maybe he just had a bad day, that's why he said this to me. This is being mindful. And I think the entire podcast demonstrated a lot of examples on how to be mindful for all of us, the educators, the parents, the children, the teachers, the education institutions. I hope the podcast, like I felt it inspirational, you felt it as well. Thank you for listening to the podcast. Please subscribe the channel.